Hello, good morning dear soldiers of 9th class. Myself Ramji sir, and you're just most welcome into the lecture number 4 of 3rd chapter for the 9th class. And in this video lecture we'll discuss about what is an atom and their symbol. My dear soldiers, up to now we have discussed about the law of combinations, about the Dalton atomic theory. Now we'll just reached by this discussion that what is an atom. So atom is just nothing, it is the smallest particle of matter, smallest particle of matter which cannot be divided further by any method according to Dalton atomic theory. According to Dalton atomic theory, we have just made a conclusion, made a picture of an atom, that is the smallest particle of matter which cannot be divided further, and that is called as the atom. The particular entity of matter, which one is smallest? Nothing is going to be smaller than atom. Then the atom, that part of the matter is called as the atom. Atom क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है of the matter. बोलो बात समझ में आती है? ठीक है. अब now today it is the very big just question, when the matter just smallest particle of matter just has been identified, had been determined by the scientist. There was the great war among the scientists about the just determination about the representation of these atom of the different matter. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि किसी भी मैटर का पर्टिकुलरली स्मॉल जो पार्टिकल होगा वो एटम होगा. अलग अलग मैटर के जो एटम होंगे वो प्रॉपर्टी में उनकी जो साइज है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. They will have the different just identification, different property of the different element of the different atom, matter. Now we'll just today we'll see that कि how the atom will just identify, how the atom will represent in front of the just society, in front of the candidate. तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ सिंबल. बट व्हेन द साइंस मेड द एडवांसमेंट, a body was constructed, organization was constructed, and that organization was called as IUPAC. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry. ये यूनियन है केमिस्ट्री के जानकार लोगों की, केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखने वालों की, स्टूडेंट्स की, प्रोफेसर्स की, साइंटिस्ट की, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टेट पे. एंड ये जो बॉडी है, ये जो फ्रेमवर्क है, इट वन इज जस्ट प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस अबाउट द chemical rules, about the particular whatever the changing occurring into the just chemistry, about the laws, about the like that. So IUPAC ने बताया कि नहीं, हर एक एटम का एक अपना सिंबल होना चाहिए. One particular kind of atom can be represented only with a specific symbol, and that symbol it should be internationally accepted, globally accepted. बोलो बात समझ में आती? तो उस सिंबल को आज हम लोग सीखेंगे. We'll try to know, we try to learn about the different symbol of atom. आइए शुरू करते हैं. तो पहला हमारे पास है
hydrogen. The lightest element is hydrogen. So my dear soldiers, what I am suggesting to all of you, we'll learn the symbol of atom with the help of periodic table, with the help of periodic table. और सडनली आप जो है हर एक एटम के सिंबल को लर्न नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट विल डू, विल टेक अ स्टेप वाइज मैनर, विल टेक अ स्टेप, विल लर्न इन अ स्टेप वाइज मैनर. ठीक है. तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल H से. फिर है हीलियम. हीलियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? He से. फिर है लिथियम. लिथियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Li से. फिर है बेरिलियम. बेरिलियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Be से. फिर है हमारे पास बोरॉन. बोरॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल B से. फिर क्या है? कार्बन. कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से. फिर है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से. फिर है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल O से. फिर क्या है? फ्लोरीन. फ्लोरीन. फ्लोरीन को किससे? कैपिटल F से. फिर आता है नियॉन. नियॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ne. देखिए यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यदि किसी एटम के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है, यदि ये 2 लेटर से रिप्रेजेंटेड है तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा. इस बात का ध्यान रखना है. जनरली एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कैपिटल लेटर, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. लेकिन यदि किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन 2 लेटर से है तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज इट विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड विल ऑलवेज विल बी स्मॉल. तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? नियॉन. फिर क्या है? सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. फिर मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg. देखिए कैपिटल लेटर स्मॉल Mg. एल्युमिनियम का सिंबल क्या है? Al. A एंड स्मॉल l. यदि आप A इंटू कैपिटल L लिखोगे तो इट इज़ अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. बोलो बात समझ में आती? फिर सिलिकॉन Si. फिर फास्फोरस कैपिटल P. फिर फास्फोरस. फिर क्या है? सल्फर कैपिटल S. फिर क्या है? क्लोरीन Cl. कैपिटल C एंड L. कैपिटल C एंड स्मॉल l. क्लोरीन. नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, Cl. फिर आर्गन Ar. आर्गन Ar. पोटेशियम का सिंबल क्या है? K. पोटेशियम का सिंबल क्या है? K. कैल्शियम. कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca. C एंड स्मॉल a. बोलो बात समझ में आई? इस तरीके से याद रख सकते हैं. फिर कैल्शियम के बाद क्या आता है? स्कैंडियम Sc. टाइटेनियम Ti. वेनेडियम V. क्रोमियम Cr. मैंगनीज Mn. बोलो फिर क्या आता है? आयरन Fe. आयरन Fe. कोबाल्ट Co. C एंड स्मॉल o. C एंड स्मॉल o. यदि C एंड दोनों यदि कैपिटल लेटर में लिखते हो तो ये क्या बन जाएगा? इट इज नॉट द एटम, इट इज व्हाट? इट इज द मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो एक C एंड स्मॉल o, ये कोबाल्ट है. इसका क्या नाम है? कोबाल्ट है. एंड ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड. तो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड. तो कोबाल्ट. फीको निकिल Ni. निकिल. फिर कॉपर. फिर जिंक. जिंक Zn. जिंक.
इतना याद रखिए 1 to 30। इस तरीके से आपका ये हो गया। यदि हम और सिंबल की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br ब्रोमीन, आयोडीन कैपिटल I, एस्टेटाइन, At। यदि कुछ इनर्ट गैसों का एलिमेंट का याद करें तो जैसे कि हीलियम, हीलियम में मैंने बताया क्या है, हीलियम, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जीनन Zn, सॉरी जीनन क्या है Xe, रेडॉन Rn, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं, नोबल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, नोबल एलिमेंट्स हैं। नोबल एलिमेंट सिंबल हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट सिंबल। आपको एक दिन में नहीं याद हो पाएगा, आई नो वेरी वेल, यू हैव टू बी टेक 1 by 1 स्टेप्स, ठीक है। और देखिए कुछ और एलिमेंट देखिए, फर्स्ट ग्रुप में है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Rb, सीजियम, इस कैपिटल C स्मॉल है, सीजियम, फ्रांसियम, F इंटू स्मॉलर, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, Sr, स्ट्रोंसियम, बेरियम, Ba, ए है बेरियम, एक सिंबल होता है Be, इसका क्या नाम है, बेरिलियम। देखिए यहाँ पे बेरिलियम Be, और यहाँ पे क्या है Ba, बेरियम, क्या नाम है इसका, बेरियम, बेरियम। बोलो रेडॉन या रेडियम, रेडियम, ठीक है, बेमक्का सरबारा। इसके बाद और सिंबल देखिए, इसके बाद और सिंबल देखिए, ये क्या है, बोरॉन, बोरॉन, इसका नाम क्या है, बोरॉन, बी से कैपिटल बोरॉन। एल्युमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम, ठीक है, ये है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन Si स्मॉल I, जर्मेनियम J कैपिटल G और स्मॉल E, जर्मेनियम। टिन Sn, लेड Pb कैपिटल P स्मॉल b, लेड, इसको क्या हो, लेड, लेड, ये क्या है, टिन। ये क्या है, जर्मेनियम, जर्मेनियम। ये क्या है, सिलिकॉन, याद रखिए क्या है, सिलिकॉन। ये क्या है, कार्बन, ऑलरेडी यू नो दैट। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये क्या है, बिस्मिथ, Bi। ये क्या है, नाइट्रोजन, सभी को पता है नाइट्रोजन। ये क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस। ये क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल है, आर्सेनिक। ये क्या है, एंटीमनी, एंटीमनी। ये क्या है, बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ, बिस्मथ, ठीक है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? आप कहोगे कि सर आप ये कैसे सब याद कर लिए, इज इट नॉट? बोलिए। तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, उसको देखिए। इस तरीके को याद करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, पीरियोडिक टेबल। विल लर्न द पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, काम पढ़ना है, इनटू 10th क्लास पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लू देता हूँ, इसको समझिए। इतना सिंबल याद करने के बाद इसको समझिए। देखिए, हमने बना लिया कुछ एलिमेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने एक ग्रुप में बना लिया। पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में ही हम आपको देंगे। तो यहाँ पे है ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, यहाँ पे फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और जीरो ग्रुप।
बल्कि और पास पास में लिखते हैं, सॉरी, विल ट्राई टू राइट इन अ क्लोज मैनर। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप एंड जीरो ग्रुप। आप मेरे साथ याद रखिए, इसका नाम है हली ना करब कसफर। ह ली ना क रब कस फर। हाँ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रांसियम। याद रखिए सिंबल। इसमें क्या है? बे, मग, का, सर, बा, रा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप में आइए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सिंबल याद रखना है हर एक एटम का, एलिमेंट का। बोलिए बात समझ में आ रही? फोर्थ ग्रुप में आइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कैसे याद रखेंगे? कहें सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। फिफ्थ ग्रुप में आइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। कैसे याद रखेंगे? नई, पड़ोसन, ऐश्वर्या, से भी, ब्यूटीफुल। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसको सिंबल याद रखिए। इसके बाद छठे ग्रुप में आइए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? हाउ विल लर्न इट? सो फॉर दिस symbol for this series of element, what the phrase is? और स्टाइल से टीपो। क्या है? और स्टाइल से टीपो। और स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सातवें ग्रुप में आइए, सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ClBr। ठीक है। जीरो ग्रुप में आइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। हीना, नीना और करीना जीरोक्स हैं रानी की। ये जीरो ग्रुप के सीरीज के एलिमेंट्स हैं जिसको कि हम लोग सिंबल याद कर सकते हैं। हीलियम He, Ne, Ar, Kr, Se, Rn। यानी जीरो ग्रुप के एलिमेंट जो है दो सिंबल से, दो वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें पहला लेटर आपको कैपिटल और दूसरा जो है स्मॉल लिखना पड़ेगा। तो ये तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल हैं, जिसको कि हम लोगों को ऐसे याद रखना है। इसके बाद कुछ हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको कि मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। तो देखिए, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, क्रोमियम मैग्नीज, आयरन Fe, कोबाल्ट C स्मॉल o, फीको नी, निकिल Ne, निकिल, कूजन Cu, कॉपर Cu एंड जिंक। सक्टिव कार्बन फीकोनिकूजन। ये आपके कुछ एलिमेंट है।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसको देखिए मैग्नीज है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, दोनों में अंतर है, Mn एंड Mg, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। आयरन, कोबाल्ट, इसको मैंने बताया C और स्मॉल लेटर O, C कैपिटल दोनों हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। निकिल, यहाँ पे देखिए Ni और यहाँ पे देखिए Ne, ये नियॉन है और ये क्या है, निकिल है। कॉपर, Cu, यहाँ पे Cu, इसको यहाँ स्मॉल यदि O रहेगा तो कोबाल्ट और ये स्मॉल U रहेगा तो कॉपर। जिंक, Zn, तो इस तरीके से माय डियर सोल्जर्स वी कैन मेमोराइज, वी कैन लर्न, रिमेंबर द सिंबल ऑफ एलिमेंट और सिंबल ऑफ एटम्स। तो I hope that you have enjoyed the lecture. You will memorize the symbol of element or the atom. आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Take care. Bye bye.